السلام علیکم ناظرین، 4 TV نیوز خبر کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں غوثیہ بانو۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں خبر کشمیر کی سرخیوں پر۔ جمعہ کے دن جموں کشمیر میں دوبارہ لاک ڈاؤن امتناعات نافذ۔ سری نگر میں سڑکیں دیکھی گئی ویران۔ جموں کشمیر میں کووڈ کے کیسز میں بتدریج کمی درج۔ سری نگر میں حوصلہ افزا صورتحال، اعجاز اسد کا بیان۔ این سی رکن پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے کیا اننت ناگ کا دورہ۔ میڈیکل کالج میں انتظامی امور کا کیا معائنہ۔ فنڈز میں اضافے کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ بڈگام کے کرال پورہ میں سی آر پی ایف قافلے پر سنگ باری، نوجوانوں کو منتشر کرنے فورسز نے کی ہوا میں فائرنگ۔ جموں میں شراب کی دکانات کی کشادگی، مقامی عوام نے کیا احتجاج، ضلع حکام کے خلاف کیا مظاہرہ۔ کٹھوعہ میں سرحد کے قریب مارٹر شیلز برآمد، فورسز نے کی کارروائی، بم اسکواڈ ٹیم نے شیلز کو بنا دیا ناکارہ۔ بڈگام کے اومپورہ ہاؤسنگ کالونی میں دردناک واقعہ، جنگلی جانور کے حملے میں کم سنگ بچی جاں بحق، مقامی لوگوں نے کیا شدید احتجاج۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ جموں کشمیر میں جمعہ کے دن بازار بند رہے اور مکمل طور پر لاک ڈاؤن امتناعات نافذ رہے۔ سری نگر کے مرکزی بازار لال چوک کی سڑکیں ویران دیکھی گئیں۔ جمعہ کے دن کووڈ لاک ڈاؤن امتناعات کے دوران بازار بند رہے، جبکہ سڑکوں پر بہت ہی مختصر تعداد میں گاڑیوں کی آمد رفت دیکھی گئی۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ نے جموں کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن میں نرمی کے تحت نیا شیڈول جاری کیا ہے، جس کے تحت جموں کشمیر میں 3 دنوں کے دوران 50% دکانات آلٹرنیٹ بنیادوں پر کھلی رہے گی، جبکہ جمعہ رات 8 بجے سے پیر کی صبح 7 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن نافذ رہے گا، جبکہ پیر، بدھ اور جمعرات کو 50% دکانات کھولنے کی اجازت ہے۔ خیال رہے کہ جموں کشمیر میں کووڈ کے کیسز میں کمی درج کیے جانے کے بعد حکام کی جانب سے یہ نیا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں دی گئی نرمی کے تحت جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں 50% دکانات کھلی رکھنے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے تحت 50% گاڑیوں میں سواریوں کو بٹھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ 96 کنٹینمنٹ زونز میں یہ ہنوز نرمی نہیں دی گئی ہے، جبکہ دکان کھولنے اور گاڑیاں چلانے والے ٹرانسپورٹرز، کنڈکٹرز، ڈرائیورز کو اپنی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے لی گئی اینٹی کووڈ ویکسین کے سرٹیفکیٹ بھی دکھانے ہوں گے۔ ڈی سی سری نگر کی جانب سے اس ضمن میں جاری کردہ ہدایت کے مطابق خانگی اسپتالوں، نرسنگ ہومز، ای کامرس اور کوریئر خدمات کی سرگرمیوں کو حسب معمول انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ ہفتے میں پیر، بدھ اور جمعرات کو جزوی طور پر یعنی 50% دکانات کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آؤٹ ڈور بازار اور آؤٹ ڈور شاپنگ کمپلیکسوں کو پیر، جمعرات کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سری نگر حکام کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق روزانہ رات 8 بجے سے دوسرے دن صبح تک رات کا کرفیو نافذ رہے گا، جبکہ ہر جمعہ رات 8 بجے سے پیر کی صبح 7 بجے تک ہفتہ وار لاک ڈاؤن امتناعات عائد رہیں گے۔ ایکچولی یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے پچھلے 1 مہینے سے، ایکچولی میں ٹریڈ سے بھی وابستہ ہوں۔ ہم نے 2-3 دن پہلے ڈویژنل کمشنر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ 2 دن کھلا رہے گا، لیکن وہاں پر جتنے بھی ٹریڈرز تھے انہوں نے اس سے یہی مطالبہ کیا، مہربانی کر کے کم از کم 4 دن آپ کھلا رکھے، تبھی ہماری اکنامی جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے بزنس مینوں کا، ٹریڈرسوں کا کتنا لاس چل رہا ہے پچھلے 1 مہینے سے، نہیں پچھلے 3 سال سے یہاں پر لاس چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں دیکھیے، یہاں کے دکاندار، یہاں کے بزنس مین
बहुत ही परेशान हुए हैं, जहनी परेशानी में वो अभी इस वक्त मुब्तला है। हालांकि लोग यहाँ काफी अच्छे एसओपी फॉलो नहीं, एसओपी तो सब एसओपी तो देखिए मेरे मुंह पे डबल मास्क लगा हुआ है, सैनिटाइजर गाड़ी में रखा हुआ है, और क्या कर सकते हैं हम। सोशल डिस्टेंस भी हमने बार बार ट्रेडर्सों को भी, ट्रेडर्स के जितने भी लीडर है उन्होंने अपने जितने भी उनके साथ मुंसलिक लोग हैं उनको बार बार अपील की आप एसओपीज को फॉलो कीजिए। लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कैसे यहाँ पर ये एक दिन खुला रखना, 2 दिन इन्होंने खुला रखा, लेकिन एक साइड में एक दिन दूसरे साइड, इसका मतलब एक ही दिन खुला है। दुकान बिजनेसमैन के लिए एक ही दिन खुला है, बिजनेसमैन के लिए 2 दिन खुला नहीं, 3 दिन। हमारी यही इंतजामिया से अपील है, मेहरबानी करके कम से कम एक हफ्ते में 3 दिन खुला रखे, यही हमारी डिमांड है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने कहा है कि श्रीनगर में कोविड केसेस में काफी कमी रूनुमा हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड केसेस का मुस्बित तनासुब 33% से आज 6.5% हो चुका है। कोविड के केसेस में तकरीबन 78% कमी आई है। उन्होंने कहा कि जिला श्रीनगर में ताहाल 3700 के करीब कोविड के फाल केसेस मौजूद है। उनका कहना था कि ताहाल श्रीनगर में 7 लाख के करीब कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में टीका अंदाजी का अमल तेजी के साथ बदस्तूर जारी है। पिछले 4 हफ्तों के दौरान इंतजामिया की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात के कोविड के मुस्बत केसेस में, इन इक़दामात की वजह से कोविड के मुस्बत केसेस में कमी आई है। देखिए, अभी जो कोविड की सूरत हाल है श्रीनगर जिले में, उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पॉजिटिविटी रेट जो पीक 33% हुआ करता था वो अब नीचे आकर 6.5% हो गया और तकरीबन 78% गिरावट आई है केसेस में। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़िला श्रीनगर में अभी भी 3700 के करीब एक्टिव केसेस हैं। आज तक पूरे ज़िले में 7 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं, आरटीपीसीआर और रैट दोनों मिलाकर 7 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं पूरे ज़िले में। इसके अलावा वैक्सीनेशन पूरे जोरों शोरों पर चल रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव, उसमें 18 to 44 ईयर्स ग्रुप, 45 प्लस दोनों में वैक्सीनेशन जारी है। आज तक अगर पिछले 4 हफ्तों में आप देखें, जो कंटेनमेंट मेजर्स हमने उठाए थे, जिसमें कोरोना कर्फ्यू, नोटिफिकेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन, वैक्सीनेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल, ये सारी जो हिकमत अमली है, इसी के तहत चलकर जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें नुमाया गिरावट देखने को मिली है। अभी भी तकरीबन 3700 एक्टिव केसेस हैं जिला श्रीनगर में, लिहाजा हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, एसओपीज का पालन करने की जरूरत है। अनलॉक जो पार्शली हुआ है ये मिनिमल अनलॉक है, कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे और इस खुशफहमी में भी ना रहे कि अब हम बिल्कुल अनलॉक कंप्लीट हो चुका है और अब हम छूट है, खुला फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ज्यादा इमरजेंसी की सूरत में ही बाहर निकलें। मैं सभी से आपके चैनल के जरिए इस्तदा करना चाहता हूं कि यहां से, जहां हम जिला श्रीनगर ऑरेंज जोन में है, यहां से हमारे पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो हम वापस रेड जोन की तरफ जाते हैं या फिर हम ग्रीन जोन की तरफ जाएंगे। मार्केट में लोग खुश नहीं है कि हफ्ते में एक ही दिन मिल रहा है। आप बताइए कि हम तब खुश होंगे जब कोई अपने फैमिली को की देख रेख करने वाला शख्स खुदा न खास्ता हाई रिस्क में एक्सपोज हो और जो आमदनी का जरिया है वो पूरे परिवार का इफेक्ट हो। क्या वो अच्छी सूरत हाल है, या ये अच्छी है कि पहले जानों को बचाया जाए, जिंदगी की हिफाजत की जाए? तो वो बहुत जरूरी है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक भारत में कोविड से बचाव के लिए ताहाल 17.2 करोड़ बशमूल 60% उम्र रसीदा अफराद को कम से कम पहले मरहले के टीके दिए जा चुके हैं। जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत सेहत ने आज मामूल के मुताबिक प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अवाम से अपील की कि वो बेखौफ टीके लेने को तरजीह दें।
واضح ہے کہ بھارت میں کووڈ کی دوسری لہر اپنی انتہا کے بعد اختتام پذیر ہے. جمعہ کے دن وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 1,32,364 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں اور اس دوران 87,74,350 کیسز درج کیے جا چکے ہیں اور پچھلے 15 مہینوں کے دوران بھارت میں کووڈ سے 3,40,702 اموات درج کی گئی ہیں. کووڈ کی روک تھام کے لیے ٹیکہ اندازی کا عمل جاری ہے. مرکزی وزارت صحت کے مطابق بھارت میں تاحال 22,41,09,448 اینٹی کووڈ ٹیکے دیے جا چکے ہیں. جہاں ہم کیسز میں کمی نوٹ کر رہے ہیں، ریکوری میں ایک پازیٹیو ٹرینڈ نوٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے گائیڈنگ پرنسپلز پر اسی طرح سے، اسی مومنٹم سے، اسی انرجی سے، اسی سپیڈ سے کام کرتے رہیں. ہمارے 5 پرنسپل جس کو ہم ہمیشہ آپ کے دوارا سب لوگوں سے ونتی کرتے رہے ہیں، جس میں کہ ہمارا مین فوکس ہے کہ ٹائم پر ٹیسٹنگ کرائیں، ساتھ ہی ٹیسٹ ہونے کے ساتھ پراپر آئسولیٹ کریں، اور ہمارے سمپرک میں آنے والے جو لوگ ہیں جن کے چانسز ہے کہ وہ بھی پازیٹیو ہو سکتے ہیں، ان کی ٹیسٹنگ کرائیں آئی سی ایم آر پروٹوکول کے تحت. جو لوگ ہوم آئسولیشن میں رہیں وہ ہوم آئسولیشن کی گائیڈ لائن فالو کریں، اور جن کو ضرورت ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے کلینکل مینجمنٹ پروٹوکول کے تحت اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں. نئے ایک ہمارے جو آرمر ہے، نیا ایک سپورٹنگ ٹول ہے ویکسینیشن، ہم اس پر دھیان دیں. اس کے بارے میں کوئی بھی بھرانتی نہ رکھتے ہوئے ویکسینیشن جب بھی جس بھی سینٹر میں ہمارے پاس اویلیبل ہو ہم ویکسینیشن ضرور کرائیں. اور ساتھ ہی مکھیتہ سب سے امپورٹنٹ ٹاسک از ان ٹرمز آف کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر، ہم روٹ کاز پر کام کریں. ہم یہ انشور کریں 2 گج کی دوری، یوز آف ماسک اینڈ پراپر سینیٹیشن، ریسپریٹری ہائیجین، ان پریکٹسز کو فالو کرتے ہوئے انفیکشن کو پھیلنے سے ایب انیشو سٹارٹنگ سے ہی پھیلنے سے روکیں. دھنیہ واد. ڈاکٹر وی کے پال جی. دھنیہ واد. تھینک یو لو. پینڈیمک کی سچویشن میں لگاتار سدھار ہے، کنسسٹنٹ امپروومنٹ ہے، اینڈ دس از the data on positivity is also encouraging, but we are continuing to enforce very high level of coverage of testing, which is a very core and pivotal tool toward pandemic control. Because with testing, you start to identify positive cases, you look after them, and once you detect positive cases, you also then respond in other ways. So testing is absolutely. WHO سے وابستہ عالمی ویکسین ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کووڈ سے لڑائی میں بچوں کی ٹیکہ اندازی موجودہ صورتحال میں ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ڈاکٹر کیٹھے اوبرین نے دولت مند ممالک میں نوجوانوں اور بچوں کو ٹیکے دیے جانے کے رد عمل میں کہا ہے کہ عالمی سطح پر ٹیکوں کی کمی کے تناظر میں بچوں کی ٹیکہ اندازی WHO کے نزدیک فی الحال ترجیحی نہیں ہے. ڈاکٹر اوبرین کا کہنا ہے کہ بچوں کو کووڈ سے زیادہ خطرات لاحق نہیں ہیں. ان کی ٹیکہ اندازی انہیں کسی بیماری سے بچانے سے بڑھ کر کووڈ کی منتقلی کو روکنا ہے. خیال رہے کہ کینیڈا، امریکہ اور یورپی یونین نے حالیہ دنوں 12 سے 15 برس کے بچوں کی ٹیکہ اندازی کو منظوری دی ہے. خیال رہے کہ بعض ماہرین نے کووڈ کی تیسری لہر کو بچوں کے لیے خطرناک بھی قرار دیا ہے. تاہم بھارت میں بچوں کی ٹیکہ اندازی کے لیے ٹرائل بھی شروع ہو چکے ہیں. بڈگام کے کرال پورہ علاقے میں آج مبینہ طور پر بعض نوجوانوں نے CRPF کے قافلے پر پتھراؤ کیا. اس دوران علاقے میں فائرنگ کی آواز بھی سنائی دی گئی، جس کے بعد کچھ وقت کے لیے یہاں لوگوں میں تشویش دیکھی گئی. ایک سینئر پولیس عہدیدار کے مطابق CRPF 39 بٹالین کا قافلہ چناپورہ سے ڈونواڑی چاڈورا کی جانب رواں تھا اور اس دوران کرال پورہ علاقے میں بعض نوجوانوں نے CRPF کے قافلے پر پتھراؤ کیا. تاہم انہیں منتشر کرنے کے لیے فورسز نے ہوا میں فائرنگ کی. تاہم فائرنگ اور پتھراؤ میں کسی نقصان کی توثیق نہیں کی گئی ہے.
तो दूसरी जानिब कठुआ में सरहद के करीब वाक़ एक देहात में 2 मार्टर शेल्स को नाकारा बना दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कठुआ में सरहद से मुतसिल देहात करोल बदू में 2 मार्टर शेल्स पाए गए, जिसकी पुलिस को इत्तला दी गई और इसके बाद पुलिस और बीएसएफ की मुश्तरका टीमों ने इलाके का मुहासरा किया और बम स्क्वाड टीम ने मार्टर शेल्स को महफूज तरीके से नाकारा बना दिया। एनसी के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने आज अनंतनाग का दौरा करते हुए यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया। हसनैन मसूदी ने डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने इंतजामात और मसाइल से मुतालिक आगाही हासिल की। इस मौके पर हसनैन मसूदी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोविड से निमटने के लिए फंड में इजाफा करे। उन्होंने फौरी तौर पर 25 लाख रुपये के फंड की इजराई का हुक्म से मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कोविड केयर सेंटर्स के क़याम का हुक्म से मुतालबा किया और इस मौके पर अब्दुल मजीद लारमी और एनसी के दीगर मुकामी लीडर्स भी उनके हमरा मौजूद थे। कोविड-19 के हवाले से तो मैंने अपने एंटी लैंड से 70 लाख रुपए इस हॉस्पिटल के लिए मजबूत बनाने के लिए, तो मैंने 25 लाख रुपए कोविड आईसीयू के लिए दी थी। और यहाँ आने का मकसद ये था कि क्या वो कोविड आईसीयू जो हम प्लान कर रहे हैं क्या वो हुआ है सेटअप, नहीं हुआ सेटअप, जो पेटी के नंबर थे, इनके खर्चा थे, वो सारे क्लियर करनी थी। यहाँ तो वो विजिलेंट रहना चाहिए, जो भी विजिलेंस स्ट्रक्चर है इन मामला पर। लेकिन जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, यहाँ पर 2500 लीटर पर मिनट के इसका जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो खर्च। तो मेरा ये मुतालबा होगा कि 1000 लीटर जो आपने और यहाँ के लिए प्लान किया है वो फौरी लगवाइए। वो टेकअप में करूँगा विदिन 2 days, सो दैट वी हैव 1000 लीटर मोर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3500 लीटर पर मिनट की फैसिलिटी आ जाएगी। रिक्वायर्ड में पहली 500 फंक्शन है, 500 बनाई जा रही है। तो हर सीमत में हमें काम कर रहे हैं, आपको भी हमको भी सबको। जो मेरी नॉलेज में है कुछ इश्यूज हुए हैं सिक्योरिटी को लेकर, कुछ बाकी जो फैसिलिटीज़ है, बाकी जो वहाँ पर मुख्तलिफ है, उनकी तरफ से कोई खदशात है, रिजर्वेशन है, वो भी सॉर्ट आउट करेंगे। वो भी अगले दिनों में मैं ये बैठक करूँगा कंटिन्यू करना। और जो हमारा मैन पावर था, देखिए सरकार आज तो कह रही है हर गाँव में हम 2-2 बेड रखेंगे। क्या फ़ायदा है जब हम मेडिकल सपोर्ट नहीं होगा। इसी तरह यहाँ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी उससे नहीं होगा, कैसे बनाया जाएगा कोविड आईसीयू। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1723 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर में 1126 और जम्मू में 599 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 34 अमवात भी दर्ज की गई है। कश्मीर में 21 कोविड मुतासरीन और जम्मू में 13 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में कोविड के जुमला फाल केसेस की तादाद 29,615 बताई गई है और इस दौरान 2721 कोविड मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं और इसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताहाल 4026 अफराद कोविड से फौत हो गए। पुलवामा में ट्यूबरक्लोसिस टीबी क्लिनिक के ओपीडी सेक्शन के बंद रहने के नतीजे में मुकामी मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि कोविड से निमटने के लिए ट्यूबरक्लोसिस क्लिनिक ओपीडी सेक्शन के स्टाफ को कोविड से निमटने के लिए खुसूसी खिदमात उनसे ली जा रही है और इस नतीजे में ओपीडी सेक्शन को बंद कर दिया गया है। ओपीडी सेक्शन के बंद किए जाने के नतीजे में बिलखुसूस टीबी के मरीजों का बुरा हाल है और इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। वारिया मुश्किलात आए कुपवार पे बस सुबह 8 बजे पे वाज 8 बजे पे वादे पातन वन हड़ताल वह क्या करो। तो यहाँ पे जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस का जो ये इलाज हुआ करता था वो अब यहाँ बंद किया गया है। तो खुदारा जो ऐसे पेशेंट्स है उनको यहाँ से रेफर ना किया जाए, यहाँ पर लोकल डॉक्टर्स रखे जाएं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वेकअप हो जाए ताकि आवाम मुश्किलात से दो चार ना हो जाए, तो आम इंसान को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
मे पत मिलो ना पत मिले मे क्या टेबलिटी हकीकतन तो मगर मे बच्चे अवेलेबल ठीक क्या बस निमन तो निमन कोत गो तो गो कोत कि अब खास कर पुलवामा आस पास रोजान कि मैं यसान कि हॉस्पिटल बंद गोस न गसन कह। बडगाम के ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में एक इंतहाई तकलीफदा वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक बडगाम के ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज एक 4 साल लड़की अजहर शकील जो अपने घर के करीब खेल में मसरूफ थी, उसको एक तेंदुआ उठा ले गया, जिसके आज करीबी फॉरेस्ट नर्सरी से लाश बरामद की गई। इस वाक़े ने इलाके में लोगों को गम गुस्से से दो चार कर दिया है। उन्होंने आज महकमा जंगलात और हुक्काम के खिलाफ एहतजाज करते हुए इस अलमनाक वाक़े के लिए हुक्काम को जिम्मेदार ठहराया। अजहर शकील दुख्तर शकील अहमद की लाश आज सुबह फॉरेस्ट नर्सरी में पाई गई। मुतवफ़ी लड़की के दादा के मुताबिक लड़की घर के करीब अपनी गुड़िया से खेल में मसरूफ थी कि इस दौरान तेंदुए ने तेज रफ्तारी के साथ हमला करते हुए इस लड़की को दबोच लिया और जंगल की तरफ गायब हो गया। दीगर लोगों ने भी इस मौके पर तेंदुए का ताक़ुब किया, लेकिन वो झाड़ियों में गायब हो गया। ताहम आज सुबह लड़की की लाश बरामद की गई, जिसने मुकामी लोगों को गम गुस्से से दो चार कर दिया। उन्होंने महकमा जंगलात और मुतालिका अहदेदारों को इस तरह के वाक़ियात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके अंदर घुसे, उनके रिश्तेदार वहाँ अंदर घुसे, वहाँ उनने देखे वो डेनिस कैसा है, तो आज उनने वो देखी लाश आज सुबह को मिली है। जब वो वहाँ चले गए वाइल्ड लाइफ वाले क्यों नहीं जा सकते वहाँ पर उनने वो क्यों नहीं लगाई जो वहाँ पर पंजरी जो है उनके केज जो लगाने हैं उनके। तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज मैं मजबूर कराना चाहता हूँ कि ये जो फॉरेस्ट यहाँ पर है उसे खत्म कर दिया जाए। अगर वो यहाँ के लोगों को बसाना चाहते हैं या हमें ये पैसे दे दे, हम यहाँ से भाग जाएंगे। सर सबसे पहले 2014 में यहाँ स्पॉट किए गए लेपर्ड्स। ये एक गवर्नमेंट नर्सरी है, लेकिन ये इतनी डेंस नहीं थी, लेकिन कुछ सालों से ये बंद पड़ी है। न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे कोई कान धर रहा है और ना ही वाइल्ड लाइफ वाले आए थे कुछ दिनों पहले, लेकिन 2 दिन आते हैं, तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। केज लगाए हैं लेकिन इन केज का कोई फायदा नहीं हुआ। हम ये पहले से ही जान चुके थे कि जब तक यहाँ कोई ह्यूमन लॉस ना हो तब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कदम लेने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन कल जब एक मासूम सी बच्ची जिसको यहाँ से उठा लिया गया, तेंदुए ने घर से उठाया, तब जाके ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा जाग गई है। वो दस गो कि मे साइकिल हेचान 2 सेकंड गई, 2 सेकंड बागस मज बिहित बो योत अति साइकिल हेचान सिर्फ पच 4 कदम बाग पातस पे कह नीर चीख ये चीख है समी दब द्राय आवाज द्राय बो गो शेख मे खबर लोग गस क्या यमिक एहतमाल जा। हालांकि 4 वरी ब्रोट गुमुत ये डिक्लेयर क्या वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी। अच्छा क्या गो क्या न गो मुझे तूत डिस्कस कर पे जना वो लकुट बोय लकुट पन अली वो भी 7-8 साल का तमिस से अदा चीखती है। हाँ मैं भी सुनता हूँ, देखो क्या बात है। जब वो सीढ़ियों से थोड़ा 1 कदम नीचे गया, वहाँ से उसने इसकी गुड़िया गोद में थी, वो गिरी थी और उसके आगे 2 कदम नीचे गई, इसकी चप्पल मिली। जब उसने बोला उसी वक्त मैं समझा, मेरी टांगें बैठ गई। वो वक्त और ये वक्त कल 2:30 बजे रात तक हमें बहुत परेशान किया। एक टीम दूसरा टीम वो बाकी चीज वो कहाँ मिलती, वो उसी वक्त उसे ले ली थी। बाकी इस वक्त लाश मिल गई, कहीं खेत से लाई, यहाँ लोकलों ने अब सामने यह हालात उसके इधर सामने। क्या चाहते हैं प्लीज? कार्रवाई तो हमने की है, वही मैं कह रही हूँ कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका अपना एक ये होता है प्रोसीजर, हमारी तरफ नहीं कि यहाँ से निकल गए तो हमने उनको ट्रैक किया। ये अनप्रेडिक्टेबल किस्सा है, इसमें वही अवेयरनेस जो डूज एंड डोंट्स बार बार हम मीडिया में भी यहाँ पर लोगों के सामने भी और एक वाइल्ड
SOS के साथ भी हमने टेक अप किया, उन्होंने भी यहाँ पर लोगों की ये सारी चीज़ें बताई थी। ये हमने अभी हम चीफ साहब को इसका ऑर्डर, इसको ये किलिंग परमिशन अभी आ जाएगा। हमने कुछ हंटर्स को भी ये किया है, मतलब वो इसको शूटिंग के हायर किया हुआ है, इसको हंटर्स को भी हम इस पर लगे रहेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। के वाकयात पेश न आए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे की पासदारी से सरहद पर बसने वाले लोगों में इत्मीनान पाया जा रहा है। उड़ी में सरहद से मुत्तसिल इलाके में रहने वाले लोगों ने भारत पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी पर अमल आवरी का खैर मकदम करते हुए इसकी बरकरारी पर जोर दिया है। उड़ी के करीब 40 देहातों में जंग बंदी के बाद अमन व अमान और सुकून देखा जा रहा है। मुकामी लोगों ने हमारे नुमाइंदे निसार यट्टू से बात करते हुए इस बात को जाहिर किया है कि जंग बंदी पर मुस्तकबिल में भी अमल जारी रहेगा। महीने से जो LOC पे सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली हुई है। लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, लोग अपने माल मवेशी को लेके जंगल में जा पा रहे हैं, बच्चे खेल पा रहे हैं। इससे पहले जब सीज फायर नहीं था तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये डर रहता था कि किस तरफ से शेल आएगा और लोगों की जान चली जाएगी। लोगों का नुकसान बहुत होता था, माल मवेशी का नुकसान होता था, घरों का नुकसान होता था, जानी नुकसान होता था। और हमें उम्मीद है कि अब ये दोनों मुल्क जो है सीज़ फायर को कायम रखेंगे और अपने बीच में जो मामलात हैं उनको सुलझाएंगे। और जिस तरीके से LOC पे और बाकी रियासत में रहने वाले लोग जो हैं वो अमन और शांति से रह पाएं। खेलते भी लोगों ने भी राहत की। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं बस इन दोनों का समझौता होए, दोनों मुल्कों का, बस हम अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर करें। कोई गोलाबारी नहीं होना चाहिए, कोई फायरिंग नहीं होना चाहिए। बस हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि इन दोनों की सही दोस्ती होनी चाहिए और पक्का और ईमानदारी की दोस्ती होना चाहिए। बस अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं। सीज फायर जब से हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान अपना महदी फैसला हुआ है कि फायर बंदी हो गई, तब से हम लोग राहत की जीने की सांस ले रहे हैं। और हमारे बच्चे बाहर खेलने के लिए, हमारे लोग अभी ज़िम्मेदारी अच्छी हो रही है, पहाड़ों में हमारे कंडी इलाके हैं और हमारी अच्छे तरीके से काम चल रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हम ये दोनों मुल्क आपस में माहिदा करके अच्छी तरह रहें, ताकि हम लोग इनके लिए हम भी खुश रहें। हमारे बच्चे, हमारे सब लोग जो हैं पहाड़ी, ये मजबूर हैं। जब भैर होता है हम लोगों को जीने की राहत नहीं मिलती, हम बहुत मजबूर हैं। इसलिए कि हम चाहते हैं जब से ये फैरबंदी हुई है हमारे लोग अच्छे खुश तबीयत हैं, अच्छी तरह हमारे काम चल रहे हैं। हमारे माल मशी पहाड़ों में हमारी ज़िम्मेदारी जो हुई अच्छी हुई। पहले एक फैर आता था, हमारे लोग छुपते थे, कोई मर गए, कुछ क्या हुआ, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे लोग बहुत खुश हैं कि दोनों मुल्कों की ये आपस में दोस्ताना तल्लुकात रहे, इसलिए हम लोग सब इसी के साथ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोविड की दूसरी लहर में जहां एक इंसानी बहरान बन चुका है और हुकूमतों को बेहतर इंतजामात न करने के लिए तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे माहौल में बहुत सी तंजीमें और अफराद ऐसे भी हैं जो इंसानियत की भलाई के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
انہی میں اننتناگ اشمخام کے رہنے والی چنی سنگھ ہے جو پیشے سے ڈرائیور ہے، لیکن انہوں نے مریضوں کو اسپتالوں تک لے جانے کے لیے اپنی خدمات کو مفت فراہم کیا ہے۔ چنی سنگھ کی انسان دوست خدمات اور جذبے کو دیکھتے ہوئے مقامی لوگوں کی جانب سے ان کی خوب ستائش کی جا رہی ہے۔ فون کیا اس نے گاڑی فری، یہ ہماری ماں ہے، یہ بیمار ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے فون کیا ہے اس کو، تو اس نے گاڑی رکھا ہے۔ اور بھی جو ہمارے محلے میں کسی بھی اس نے فون کیا ہے تو ترنت اس نے گاڑی اپنی لائی ہے، دن میں کسی بھی ٹائم اس نے اپنی گاڑی فری سیوا رکھا ہے۔ تو یہ جو سیوا ہے سر، یہ اچانک ہی میرے دل میں خیال آ گیا، کیونکہ مجھے ایک بار ممی نے بولا تھا کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو بیٹا لفٹ دیا کرو، تو پھر سر میں ڈھونڈ ہی رہا تھا یہ موقع مجھے کب ملے۔ تو اچانک ہی ایسا ہو گیا، مہاماری کا جو دور چل رہا ہے سر، تو میرے دل میں اچانک ہی خیال آ گیا کہ چلو یہ ٹائم ملا ہے، اس سے اچھا ٹائم کبھی بھی نہیں ملے گا، اس لیے سر میں نے یہ سیوا شروع کر دی۔ کووڈ پیشنٹ سر 50-60 ہوں گے سر۔ نہیں سر، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے سر، کووڈ پیشنٹ ہو کچھ بھی ہو سر، لیکن میرے من میں کبھی یہ ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے سر۔ میں اپنے جیب سے کر رہا ہوں کیونکہ اوپر والے نے دیا ہے سر، بیٹھوں تو پھر میرے گھر والوں نے مجھے فل سپورٹ کیا، بولا کہ بیٹا آپ ڈرتے کیوں ہو، کچھ نہیں ہوگا، گرو نانک دیو جی نے جو لکھا ہوگا وہی ہوگا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، چائے پیو، جو بھی ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ تو میں تو لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن مہاماری چل رہی ہے، اس میں جتنا اتنا لوگوں سے انصاف کریں، کیونکہ یہ جو مہاماری کا دور ہے اس میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنی جانیں گوائی ہیں، تو جتنا ہو سکے اتنا لوگوں کی سیوا کرو۔ ہندواڑہ ٹاؤن میں لاک ڈاؤن کے دوران عوامی تعاون کا BDC ویلگام شیخ محمد یاسین نے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ملنے والی بعض شکایات پر دکانداروں سے خواہش کی کہ وہ اشیاء ضروریہ کی مقررہ قیمتوں کو تجاوز نہ کریں۔ بھوک میں مجسٹریٹ کپوارہ کی طرف سے ایک ضروری اطلاع تمام دکاندار صاحبان کو اپیل کی جاتی ہے، مہربانی کر کے اپنے اپنے دکان بند رکھے اور کرفیو کا اعلان ہوا ہے، اپنے اپنے گھر جائیے۔ بھوک میں مجسٹریٹ کپوارہ سے طرف سے ضروری اطلاع۔ میں یہ جو اتھارٹی ہماری فوڈ اینڈ سپلائز ہے یا جو ریٹ کمیٹی ہوتی ہے، ان کو ایک بار بازار میں چیک کرنے کے لیے جائیں اور دیکھیں کہ کون چیز کس قیمت سے آتی ہے اور کس قیمت میں بیچی جاتی ہے، کیونکہ آج کل جو یہ کووڈ پینڈیمک چل رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب لوگ جو دن بھر روپیہ 500-600 کماتے ہیں وہ بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، اور اس پر گرم بازاری کا جو عالم ہے تو اللہ ہی ان کا حافظ ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے دکاندار بھائی یا جو ہول سیلرز ہے تو ان لوگوں پر رحم کرو اور خدا کا خوف کھاؤ۔ ٹھیک ہے اگر پیچھے سے آ رہا ہے، زیادہ مہنگا آ رہا ہے، آپ اپنے ہائر اتھارٹی سے جو آپ کے ہول سیلر سے بڑے ڈسٹریبیوٹر گزارش کرنا چاہتا ہوں، پلیز اپنے آپ کو بچائیے۔ جہاں بھی گیدرنگ پلیسز ہیں، ہاسپٹل، ATM، پولیس اسٹیشن، تحصیل آفس، میرے بلاک میں نے اپنے سرپنچ صاحبان کو بھی بلایا، میٹنگ ان کے ساتھ کی، BMO صاحب کو بھی، عنقریب ہم SHO صاحب کے ساتھ بھی کرنے جا رہے ہیں یہ میٹنگ SOP کے بارے میں، اور آج بھی آپ کے مادھیم کے اس چینل کے مادھیم سے میں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھروں میں بیٹھیے، فضول گھر میں باہر نہ نکلے، اگر کسی وقت مجبوری پڑے تو اس میں سینیٹائزر استعمال کیجیے، ماسک استعمال کیجیے، سوشل گیپ استعمال کیجیے، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج ہمیں،
पूरे कौम को, पूरे मुल्क को और हमारे अरबला को भी। जम्मू में शराब की दुकानात खोलने पर मुकामी लोगों ने बरहमी का इजहार किया है। जम्मू के सरवाल इलाके में आज मुकामी बाशिंदों ने शराब की दुकानात की बहुतात और उनको मिलने वाले इजाजतनामों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जिला मजिस्ट्रेट और जम्मू एक्साइज कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा, अवाम ने कहा कि शराब की दुकानात रिहायशी इलाकों और इबादत गाहों के करीब खोली जा रही है और हुक्काम इसकी इजाजत दे रहे हैं, जबकि इसके मुज़िर असरात सारी सोसाइटी पर असरअंदाज होंगे। उन्होंने फौरी तौर पर इन दुकानात को बर्खास्त करने का हुक्काम से मुतालबा किया। पूंछ में कोविड से बनी हुई सूरत हाल के दौरान अपनी खिदमात को अंजाम देने वाले महकमा सेहत के मुलाजमीन की हौसला अफजाई करते हुए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूंछ ब्रांच की जानिब से उन्हें मास्क, पीपीई किट्स और सैनिटाइजर्स दिए गए। इस मौके पर स्टेट बैंक मैनेजर सुनील कुमार ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह, जिला अस्पताल डॉक्टर मुश्ताक हुसैन शाह को ये सब तिब्बी साजो सामान सौंपा, जिसके लिए उन्होंने बैंक के ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। है कि जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूंछ ब्रांच है, इनके मैनेजर साहब ने हमें पीपी किट्स, सैनिटाइज़र, मास्क और बाकी चीज़ें जो हैं ज़रूरत की वो डोनेट की है। तो हमें इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत भी थी। हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई भी आ रही है, लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। तो आज की डेट में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी और मैं इन लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये नोबल काज जो है इसमें अपनी पार्टिसिपेशन की है और इससे हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और कोरोना के लिए जो इस वक्त काम कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उनको ये पीपी किट जो हैं वो हम देंगे। और मैं इन लोगों से गुजारिश करता हूं कि आइंदा भी अगर ये कुछ करना चाहें तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन फ्यूचर भी ये हमें इस नोबल काज के लिए कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। और आज जो इन्होंने इसमें हमें ये चीज़ें दी हैं, मैं इनके लिए बहुत ही इनका शुक्रगुजार हूँ। कल एम्प्लॉइज फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब, उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आके यहाँ पे पीपी किट्स, सैनिटाइज़र, मास्क यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और जो डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट साहब के मुबारक से इससे जो सैनिटाइजर, मास्क वगैरह दिए थे, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, पेशेंट की हौसला अफजाई करते हैं। कभी शुक्रगुजार हूँ। महकमा आयुष की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें अवाम में क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने वाली मुफ्त अद्वियात तक़सीम की गई और उन्हें कोरोना से मुताल्लिक़ उनमें अवाम में शऊर बेदारी भी पैदा की गई। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर खलीक अंजुम ने तफसीलात बताई हैं। ये हमारे डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष के डॉक्टर मोहन सिंह की तरफ से ये एक कैंपेन चल रही है पूरी स्टेट में, जिसमें कोरोना के क्योंकि कोई इलाज नहीं है, उसके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन दे रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे एक कैंप किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम मेडिसिन इम्यूनिटी बूस्टिंग जो हमें आई है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने अवेयरनेस भी दी है लोगों को कि कोरोना से किस तरह बचा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने आप को बचाएं और इम्यूनिटी बूस्टिंग जितनी भी मेडिसिन हैं इनका इस्तेमाल करें ताकि आप कोरोना से बच सकें। और ये बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह साहब से, जिन्होंने बहुत
कोशिश करके पूरी स्टेट में ये कैंपेन चलाई और उसी सिलसिले में अवेयरनेस भी दे रहे हैं, कैंप भी कर रहे हैं और ये दवाइयाँ जो हैं लोगों को बहुत फायदा। और आज जो हमारा कैंपेन है आगे, कोविड वार्ड में जो पेशेंट एडमिट हैं उनको लिए भी हम मेडिसिन ये प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको भी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। इम्यूनिटी बढ़ाने से ये होगा कि वो इस बीमारी से लड़ सकेंगे। डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है और बहुत बढ़िया तरीके से समझाया भी है और ये ऐसे फ्री में दिया है, इसका कुछ ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और अगर लोग ऐसे करेंगे तो ये कोरोना की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हमारे खास करके पुंछ में इसका कोई भी अपना लक्षण नहीं नजर। अगर लोग ऐसे करेंगे तो अगर डॉक्टर की बात मानेंगे तो ये हमारे को ऐसे ये दवाई दी है और सब लोगों को दिया है और ये बहुत बढ़िया बात है गवर्नमेंट की तरफ से कम बहुत अच्छी बात है ये। कॉकपिट एसोसिएशन हंदवाड़ा की जानिब से हंदवाड़ा में एहतजाज किया गया। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि उनके मसाइल हल किए जाएं और मुतालबात पूरे किए जाएं। जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट, क्योंकि हमने 1 जून को ब्लैक डे मनाया था, इसलिए मनाया था कि हम पिछले 20 सालों से महकमे एजुकेशन में बसित स्वीपर नाइट की तरह वाटर मैन काम कर रहे हैं। फिर 2008 में महकमे ने हमारे हक में एक SRO बनाया था, SRO 308, जिसमें लिखा गया कि 50% कोटा एज पर क्लास 4 CPW को दिया जाएगा, जिसकी 2 बार DPC भी हुई थी। लेकिन 2017 से आज तक हमारे से ओरिजिनल फाइलें लिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स लिए गए, उसकी कमेटी हो गई है, सीनियरिटी लिस्ट निकाला, टेंटेटिव निकाला, लेकिन ये बोलते हैं DPC करेंगे, DPC नहीं हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा बहुत बड़ा इशू है, जो SRO में भी मेंशन है, SRO 308 में कॉलम नंबर 3 पर, इनको हम दे देंगे, जो रेगुलर हो जाएंगे, जो बाकी बचेंगे उनको मेरिट के हिसाब से तनख्वाह दे देंगे, जिसका 2017 कंटीजेंट पेड हर वक्त आगे आता है। अगर स्कूल की सफाई करती है कंटीजेंट पेड आगे आता है, अगर स्कूल जलाने की बात आती है तो कंटीजेंट पेड अपने जान को जोखिम में डालकर आगे आते हैं, स्कूल बचाते हैं। लेकिन जब हम इतनी कुर्बानी देते हैं, हम महकमे अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कमिश्नर सेक्रेटरी खासतौर पर गवर्नमेंट इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि अगर इतने भी आर्डर हमारे लिए निकले हैं, आपने भी वादा भी किया आपको वेजेस के हिसाब से तनख्वाह दे देंगे और आपकी DPC भी हम करेंगे, लेकिन बदकिस्मती क्या वजह है कि हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है। हम अपील करना चाहते हैं, हमें उम्मीद है गवर्नमेंट इंतजामिया हमारा मसला हल करेगा, या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जो है उसने वादा किया वो हमारा मसला हल करे। हम अपील करते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से, बहुत जोर गुजारिश हाथ जोड़ के पुरा में आज मुकामी मुसलमानों ने अपने पंडित पड़ोसी के साथ एक मरतबा फिर भाईचारे का मुजाहरा करते हुए यकजहती की मिसाल पेश की है। बांदीपुरा के अजर इलाके में एक ज़ईफ कश्मीरी पंडित खातून की पड़ोसी मुसलमानों ने आखिरी रसूमात अदा की। इस मौके पर मुतवफ़ी पंडित खातून के बेटे ने तमाम पड़ोसी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। आपको मैंने आज ही नहीं मुझे आपको इंटरव्यू देना, मैंने आपको बार बार बोला है, ये कोई नई बात नहीं। मैं बोलूँ मेरी माता जी गुजर गई तो ये लोग आ गई, ऐसा कोई जब भी वाक़ा होता है यहाँ हमारी मुस्लिम बरादरी हमेशा खड़ी होती है। मेरी माता जी कल 7 बजे गुजरी है, 7 बजे से अभी तक, जब कि आज जुम्मा नमाज है। इसे बढ़कर मैं आपको क्या बोलूँ। कश्मीर के कोने कोने में जहाँ पंडित रहते हैं, ये नहीं बांडीपोरा, कश्मीर के कोने कोने में जहाँ भी पंडित रहते हैं, चाहे शादी हो, मरण जीना हो, कुछ भी हो, हमारी मुस्लिम बरादरी हमेशा हर जगह कश्मीर में खड़ी होती है। ये कोई आज नई बात नहीं। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। जुमा के दिन जम्मू कश्मीर में दोबारा लॉकडाउन इम्तनात नाफिज। श्रीनगर में सड़कें देखी गईं वीरान। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में बतदरीज कमी दर्ज। श्रीनगर में हौसला अफजा सूरत हाल, एजाज असद का बयान।
NC رکن پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے کیا اننتناگ کا دورہ، میڈیکل کالج میں انتظامی امور کا کیا معائنہ، فنڈز میں اضافے کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ بڈگام کے کرال پورہ میں CRPF قافلے پر سنگ باری، نوجوانوں کو منتشر کرنے فورسز نے کی ہوا میں فائرنگ۔ جموں میں شراب کی دکانات کی کشادگی، مقامی عوام نے کیا احتجاج، ضلع حکام کے خلاف کیا مظاہرہ۔ کٹھوعہ میں سرحد کے قریب مارٹر شیلز برآمد، فورسز نے کی کارروائی، بم اسکواڈ ٹیم نے شیلز کو بنا دیا ناکارہ۔ بڈگام کے اوم پورہ ہاؤسنگ کالونی میں دردناک واقعہ، جنگلی جانور کے حملے میں کم سن بچی جاں بحق، مقامی لوگوں نے کیا شدید احتجاج۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبر کشمیر کا یہ بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔